Dear friends, do you know that how a small child becomes an adult? Let us know how बिल्कुल do आप we लोगों की grow तरह during हम the एकदम various न्यूबॉर्न stages बेबीज of our होंगे। life. Objectives. At the end of this topic, you will be able to define what is grow, describe the various stages of growth of a child. As we know that every living thing usually increases in its size. This increment of length or mass, weight, is called grow. Dear friends, do you see the girl in here? She is Moni. Do you know that she can crawl but she आपने अभी देखा ना, इस वीडियो में आपको क्या बताया, जस्ट ये वाला सी। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, एक इन्फेंट है। इन्फेंट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी, जो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्रॉल कर रहा है। उससे एक थोड़ा सा बड़ा बेबी है, यानी वो चाइल्ड एक है, और एक उससे थोड़ी सी बड़ी है, यानी जो स्टार्टिंग से है वो बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ मीन्स यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ मीन्स जब हमारी आपकी किसी की भी बॉडी में, हमारी हाइट में, हमारी लेंथ यानी हमारे वेट में, जब हम यानी इतने थे और हमारी हाइट इतनी हो गई, हमारा वेट सपोज अगर 5 केजी था, अब हमारा वेट 7 और 8 केजी है, और हमारी अगर वेट जो है, अगर हम इतने थे तो अब हम अगर इतने हो गए, इट मीन्स अगर हमारी लेंथ, वेट, हाइट सब कुछ बढ़ रही है, इट मीन्स हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। called grow. Dear friends, do you see the girl in here? She is Moni. Do you know that she can crawl but she cannot walk? This is called infancy stage. Look, she can now walk with the help of some support. She can now play with her toys. Now Moni has grown up. You can see that she can walk easily without any help or support. Here you can see that she is riding on a tricycle. She is happy. She can make tower of blocks. It is her early childhood stage. Friends, look, Moni is now going to the school. She is grown up now. In the evening, she rides on her bicycle. She also likes to watch cartoon movie and comedy shows in the television. This is her mid-childhood stage. Now Moni can run very fast and jump without any support. She is a fearless girl. She is learning to dance and skate. मोनी अब बड़ी हो गई है ना, अब वो सारी काम अपने से खुद से करती है। पहले वो छोटी थी, इन्फेंट थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती थी, वो सिर्फ क्रॉल करती थी। फिर वो जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई, उसने अपने पैरों को यूज किया और वो धीरे धीरे वॉक करना सीखा उसने। फिर मोनी और थोड़ी बड़ी हुई, अब वो स्कूल जाती है, वो डांस सीखती है, वो साइकिलिंग कर लेती है, यानी अब वो इंडिपेंडेंट हो गई है। She is also playing with her friends in the playground. This is her late childhood stage. After some time, Moni will again grow up and look similar to her elder sister. अब देखिए मोनी कितनी बड़ी हो गई है, अब वो इतनी बड़ी हो गई है, यानी वो ग्रो कर रही है। अब वो क्या कर रही है, खुद को फिट रखने के लिए वो एक्सरसाइज कर रही है। और वो कैसी दिखती है, वो अपनी बहन की तरह दिखने लगी है। You will easily observe some more changes in her body. This stage is called adolescence. In this stage, we can easily identify a boy and a girl by their respective features. There are so many changes that occur during the growth process in our body. These changes make us what we are. काव्या, स्टॉप ड्रिंकिंग। Hence, they make us look different from others. गुड गर्ल। Summary. Let us now summarize what we have learned so far. Every living thing grows and changes in its size. Infancy stage, early childhood, mid-childhood, late childhood, and adolescence are the growth stages of a child. People look different
because they are growing. Yes. अंडरस्टूड. वीडियो देखा आप लोगों ने? समझ में आया वीडियो क्या था? वीडियो में आप लोगों को क्या बताया गया? वीडियो में आप लोगों को डिफरेंट स्टेजेस बताई गई, जो हम जिस स्टेज में कैसे ग्रो करते हैं. अब आप लोगों को, अब हम अपनी चैप्टर पे आते हैं, जो हमारा चैप्टर है. ओके, सी, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट very interesting topic. It's not chapter 2, it's chapter number 3. Okay, it's not chapter 2, it's your chapter number 3, growing up. Yes, it's chapter number 3 na? Yes, so it's chapter number 3, growing up. In this chapter we learn about what is growth. Growth क्या है हमने पढ़ा ना भी, और हमने वीडियो देखा. वीडियो में क्या देखा आप लोगों ने? व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ मीन्स हमारी बॉडी में जब हमारी लेंथ में, हमारी वेट में कोई भी चेंजेस होता है, वो क्या कहलाता है? ग्रोथ. देन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमंस, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उसमें किन किन स्टेज में कैसे कैसे ग्रोथ होती है, वो सभी चीजें हम देखेंगे. एंड देन लास्ट वन इज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, यानी डिफरेंट एज ग्रुप में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, कौन कौन से काम कर सकते हैं. ओके बेटा, इट्स चैप्टर नंबर 3, नॉट इट्स चैप्टर नंबर 2, इट्स चैप्टर नंबर 3, ग्रोइंग अप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, इट्स आवर नेक्स्ट स्लाइड. आपको इस स्लाइड में क्या दिख रहा है? इस स्लाइड में दिख रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं. उनके डिफरेंट डिफरेंट एजेस होती है, स्टेजेस होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन स्टेजेस की बात करें उसके पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे कि ठीक है डिफरेंट एज ग्रुप है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ हम बोल रहे हैं ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. सो लिविंग थिंग्स कौन है? कहाँ पे मिलते हैं ये लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स यहाँ पे मिलते हैं. सी, लिविंग थिंग्स इट मीन्स लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स. लिविंग थिंग्स वो होते हैं विच नीड फूड एंड वाटर, जिनको जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, ये जितने भी चीजें आपको यहाँ इस स्क्रीन में दिख रही है ना, ये सभी क्या है? ये ह्यूमन बीइंग्स है, ये ह्यूमन थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है ये, जिनको कि पानी और भोजन की जरूरत होती है. इसलिए हमने कहा प्रीवियस स्लाइड में ऑल लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स यानी ह्यूमंस, ट्रीज यानी प्लांट्स और एनिमल्स, हम इन सभी की बात कर रहे हैं. हमने ये मोबाइल की बात नहीं की, ये लिविंग थिंग्स में नहीं आएंगे क्योंकि ये ग्रो नहीं करते, ये हमारी तरह खाना नहीं खाते. सो लिविंग थिंग्स वही होते हैं जो ग्रो करते हैं. जब उन्हें भोजन और पानी मिलेगा तो वो इतने से थे, फिर वो इतने बड़े हो जाएंगे. सो सी, ग्रोथ. नेक्स्ट स्लाइड. ग्रोथ, द चेंजेस इन आवर शेप एंड साइज इज ड्यू टू ग्रोथ. हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं? हमारी ग्रोथ की वजह से होती है. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जैसा कि अभी मैम ने आप लोगों को बोला कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं टाइम के साथ, बट उसमें समय लगता है. ऐसा नहीं कि आज अगर भाविश और कुशाग्र 7 और 8 इयर्स के हैं और वो आज नाइट में सोए, कल वो 10 इयर्स के हो जाएंगे. नहीं, उनको पूरा टाइम लगेगा ग्रो करने में. या कशिश चंदवानी जो है वो सडन आज नाइट में सोई है तो इतनी बड़ी है और कल वो एकदम बड़ी सी लड़की हो जाएंगी. नहीं, इट नॉट पॉसिबल. सो हमारी ग्रोथ जो क्या है वो एक स्लो प्रोसेस है, वो अपने टाइम से ही होगा. अगर आपकी ग्रोथ है तो वो धीरे 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 आपकी ग्रोथ होगी. ओके, सो
फर्स्ट सी इन दिस पिक्चर, आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? जैसा कि मैम ने आप लोगों को क्या बताया कि सभी लिविंग थिंग्स, उसमें पेड़ भी आते हैं, उसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं, उसमें हम एनिमल्स भी आते हैं। तो जितने भी ये एनिमल्स हैं ये सभी ग्रोथ कर रहे हैं। कैसे ग्रोथ कर रहे हैं सभी बच्चे यहाँ देखेंगे फर्स्ट, उसके बाद हम बुक से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे सीड है, यानी कोई भी पौधा उसके सीड जो होती है, उसकी जो बीज होती है, उसमें जब आप किसी उसको सॉइल में डालेंगे, उसमें रेगुलरली पानी कर डालेंगे, तो वो क्या होगी? वो सीडलिंग बनेगी, यानी उसमें छोटा सा पौधा निकलेगा। फिर वापस से जब आप उसमें पानी डालोगे, उसमें बहुत सारे खाद डालोगे, तो वो क्या बनेगा? वो एक बहुत अच्छा सा प्लांट बनेगा। आप देखोगे उसमें काफी टाइम लगता है। वैसे ही डिफरेंट स्टेजेस हम ह्यूमंस में भी होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? इन्फेंट, इट मीन्स अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। हम इन्फेंट किसे कहते हैं? मैम अगर आपसे कभी पूछेंगी कि इन्फेंट क्या होता है, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? इन्फेंट मीन्स अ न्यू बॉर्न चाइल्ड हु ईट फूड। लिसन बेटा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, हम आपसे फिर कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? फिर आपको बताना होगा कि क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ इन्फेंट की बात करेंगे। इन्फेंट अ न्यू बॉर्न चाइल्ड हु कैन नॉट टॉक, वो बोल नहीं सकता। कैन नॉट वॉक और ईट फूड, वो ना तो बोल सकता है, ना तो वो चल सकता है, और ना ही वो कुछ खा सकता है। वो सिर्फ क्या करता है? क्रॉल करता है। अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो वो सिर्फ क्रॉल करेगा, यानी वो कैसे मूव करता है? विथ आवर नीज एंड हैंड्स, वो अपने हैंड और नी से क्रॉल करेगा। आपके घर में अगर यंगर ब्रदर होंगे बहुत छोटे, तो आपने देखा होगा वो वॉक नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट वन, जब थोड़े से उससे बड़े होते हैं तो सेकेंड स्टेज में क्या आते हैं? चाइल्ड। सेकेंड एज हमारी क्या है जो ग्रोथ की है? नेक्स्ट स्टेज है इट्स चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स आफ्टर 2 years ऑफ बोर्थ, जब आप जन्म लेते हैं उसके 2 साल बाद क्या हो जाते हैं? चाइल्ड में आ जाते हैं। आपको अब हम इन्फेंट या बेबी नहीं बोलते, अब हम आपको बोलेंगे चाइल्ड। इट मीन्स अब आप क्या करते हैं? अब आप इस एज में अब आप बैठ सकते हैं, अब आप वॉक कर सकते हैं, अब आप खेल सकते हैं, और आप इंडिविजुअली आप खुद से विदाउट एनी हेल्प अब आप इस एज में खुद से खा भी सकते हैं। हालांकि बहुत से बच्चे अभी भी होंगे जिनको मम्मी खिलाती होंगी, बट बहुत से बच्चे खुद से भी खा लेते हैं। तो ये एज क्या कहलाती है? चाइल्ड। देन वन मोर ग्रुप, चाइल्ड और यंग के बीच में टीनेज आता है। एक और ग्रुप होती है जिसे हम लोग टीनेज बोलते हैं। टीनेज या क्या होती है? इट मीन्स अ चाइल्ड ग्रोज इनटू अ टीनेज फ्रॉम एज 13 to 19, यानी जब हम 13 और 19 के बीच में होते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टीनेज। यानी अब हम मैच्योर हो जाते हैं, अब हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या चीज सही है, अब हमारे लिए क्या चीज गलत है। नाउ नेक्स्ट इज यंग, जो आपकी पिक्चर में ये दिख रहा है ना, यंग डैशिंग स्मार्ट सा बॉय। यहाँ पे बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। सो यंग बॉय और यंग गर्ल जो एडल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? अ टीनेजर ग्रो इनटू अ यंग मैन और आइदर वुमेन। जो टीनेजर्स होते हैं वो जब बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें एडल्ट मैन या वुमेन बोलते हैं। देन लास्ट वन इज ओल्ड मैन। ओल्ड मैन यानी बूढ़े लोग, जो अब काफी जिनकी ग्रोथ हो गई, अब वो धीरे 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 वापस बूढ़े हो रहे हैं। तो ओल्ड एज मीन्स क्या होता है? ओल्ड एज मीन्स मेनी इयर्स लेटर, काफी सालों के बाद अ यंग पर्सन और एडल्ट बिकम्स ओल्ड। जब यंग लोग काफी साल तक यंग रहते हैं, फिर वो धीरे 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 क्या होने लगते हैं? वो बूढ़े होने लगते हैं। आपने देखा होगा ना, आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो वो इसी ग्रुप में आते हैं। आपके पेरेंट्स जो हैं वो यंग ग्रुप में आएंगे। जो आपके एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो आपको टीनेज में आ जाएंगे। चाइल्ड में आप बच्चे आते हैं, आप जितने भी बच्चे हो वो सभी को हम चाइल्ड में रखेंगे। और ओल्ड मैन में जितने भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स है ना, वो लोग आ जाते हैं। इट मीन्स
जो ओल्ड मैन होते हैं उनके क्या होंगी, ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन की, तो द स्किन गेट रिंकल्ड, उनकी स्किन में क्या होगी, जैसे आपकी स्किन अभी कैसी है, बहुत स्मूथ और टाइट है, बट जो ओल्ड मैन या वुमेन होंगे उनकी स्किन क्या हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, यानी झुर्रियां आ जाती हैं। आपने देखा होगा ना, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की स्किन कैसी हो जाती है, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं। सेम एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है। एनिमल्स में कैसे ग्रोथ होंगी, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, किटन है, एंड देन किटन ने किस चीज में टर्न किया है, आपने अलग अलग बेबी सुने होंगे ना, जैसे कैट की बेबी को हम क्या बोलते हैं, किटन, डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, पपी। तो एनिमल्स में भी ऐसे ही ग्रोथ होती है। नाउ हियर इज योर बुक वर्क, जो अब हम आपको आपकी बुक के थ्रू कराएंगे। सो एवरीवन टेक योर बुक नाउ। अब आप लोग अपनी बुक ले सकते हैं। हियर इज योर बुक वर्क। अब हम बुक के थ्रू करेंगे। सभी बच्चे अपने साथ में एक पेंसिल भी रखेंगे। सी हियर इज योर बुक वर्क। हु इज इज सौम्या गोरानी, काफी लेट से इन्होंने ज्वाइन किया है। सभी बच्चों के पास बुक है, बुक दिखाइए आप लोग। एवरीवन शो मी योर बुक। अब हम बुक के थ्रू करेंगे। आप सभी को समझ में आया, यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या है, ग्रोइंग अप, यानी हम सभी ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं। डिफरेंट स्टेजेस होते हैं हमारी ग्रोथ के। यस, वेरी गुड नेम। लावण्या, नहीं इवाना, वेयर इज योर बुक? Okay, so see, here is your book work. First of all, write down today's date. It's 20.4.21. आप आज की डेट लिखेंगे। ये हमारा चैप्टर कल स्टार्ट नहीं हो पाया था। आप यहाँ पे आज की डेट मेंशन करिए 20.4.21 एंड टेक वन पेंसिल। सभी बच्चे अपने साथ में पेंसिल भी रखेंगे, हमें जहां जरूरत होगी आप अपनी पेंसिल का यूज करेंगे। So chapter is Rohit is 7 years old. रोहित की क्या एज है? जल्दी बताइए, रोहित की क्या एज है? 7 years. He was a small baby when he was born. आपने जैसे देखा अभी वीडियो में या स्लाइड में, जस्ट वैसे ही रोहित है जो अभी 7 years का है, बट वो जब जन्म लिया था तब वो बहुत छोटा था। He will grow up to become a man. After that, he will grow into an old man. आपकी बुक में यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, ये किसके बारे में बताया गया है? ये रोहित के बारे में बताया गया है। रोहित पहले कैसे एक छोटा सा इन्फेंट था, बेबी था, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हुआ, वो बॉय बना, देन वो और ग्रो किया, वो मैन बना, और लास्ट में वो कैसा हो गया, वो एक ओल्ड मैन बन गया। तो ये डिफरेंट स्टेजेस किसके बारे में दिखाई गई है? ये रोहित के बारे में बताया गया है कि कैसे रोहित डे टू डे वो अपनी लाइफ में वो धीरे 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 वो ग्रो किया और आज वो एक ओल्ड मैन बन गया है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14. Page number 14 is, like Rohit, we were babies when we were born. Baby boy grow up to become men. यानी रोहित की तरह ही जब भी कोई जन्म लेता है वो इन्फेंट होता है, और जैसे ही वो ग्रो करता है वो क्या बन जाता है? मैन बन जाता है। बेबी गर्ल ग्रो अप टू बिकम वुमेन, यानी जब कोई लड़की, आप लोगों ने सुना होगा ना, आपके घर में मम्मी और पापा या आप बॉय और गर्ल, तो हम बॉय किसके लिए यूज करते हैं? नील, नील, नो डिस्कशन। ओके, जैसे आपने अपने घर में भी ही और शी सुना है ना, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जब कोई लड़का यानी जब कोई बॉय जो बड़ा होता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं मेन। वैसे ही जब कोई लड़की यानी गर्ल जब वो बड़ी होती है, जब वो ग्रो करती है, तो हम उसके लिए यूज कर रहे हैं वुमेन।
वी चेंज एज वी ग्रो, यानी हम बदल जाते हैं, हम सभी लोग बदल जाते हैं जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हमारी एज होती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में चेंजेस भी होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो, जैसा कि अभी आपको हमने वीडियो में भी दिखाया, आपको अभी स्लाइड्स में भी आपने देखा कि जैसे हम ह्यूमंस अलग अलग स्टेज में हमारी ग्रोथ होती है, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स भी चेंज होते हैं। सीड जो है वो थोड़ा सा बड़ा होके सीडलिंग बनता है और लास्ट में वो एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है। वैसे ही एनिमल्स में एग होती है, एग से चिक बनते हैं एंड देन वो एक हेन बन जाती हैं। सो रिमेम्बर, यानी हम लोगों ने ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों से ही रिलेटेड है, हम सभी से रिलेटेड है। भावेश भावेश बेटा कॉन्सेंट्रेट करिए। वी ऑल ग्रो अप, हम सभी ग्रो करते हैं। वी चेंज इन शेप एंड साइज एज वी ग्रो, ऐसा नहीं कि जब हम ग्रो करते हैं तो सिर्फ हमारी लेंथ ही बढ़ती है, ऐसा होता है क्या? आप लोगों की लेंथ ही सिर्फ बड़ी है? नहीं ना, आपके हैंड्स बड़े हो गए, आपके जो फेस है, जो आपकी, जब आप न्यू बॉर्न होंगे तो आपका फेस इतना छोटा सा होगा, अब आप बड़े हो गए तो आपका फेस भी, उसकी साइज भी बड़ी हो गई, आपके हैंड्स बड़े हो गए, आपके शोल्डर्स बड़े हो गए, तो यानी हमारी पूरी बॉडी में चेंज होते हैं। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो, यानी हमारी तरह ही प्लांट्स और एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। नाउ टेक्स्ट योर सेल्फ, आपको इसको टेक्स्ट योर सेल्फ निकालिए, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 में क्या लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल कशिश बेटा इधर देखिए, पेज नंबर 15 में लिखा है राइट बी बिलो द बेबी एंड वाई बिलो द यंग मैन एंड ओ बिलो द ओल्ड मैन। अब आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें बेबी हम किसके नीचे लिखेंगे? जो एक इन्फेंट से, यहाँ पे बेबी के नीचे हमें क्या लिखना है? बी। सभी बच्चे अपनी बुक में बी लिखिए फर्स्ट में। एंड देन सेंटर में ये जो मैन है वो कैसे मैन है? ओल्ड मैन है। सो हमें यहाँ ब्लॉक में क्या लिखना है? ओ। सेंटर में क्या लिखना है? ओ। एंड देन लास्ट वन, यहाँ पे एक यंग मैन दिख रहे हैं, हम वहां पर क्या लिखेंगे? वाई। हम क्या लिखेंगे? वाई। क्वेश्चन नंबर बी, ड्रॉ द मिसिंग पिक्चर। आपको यहाँ पे एक मिसिंग पिक्चर बनानी है, आप ये बाद में कर लेना, ठीक है? क्लास के बाद जब आप फ्री होगे तो आप विद द हेल्प ऑफ योर मदर, आप यहाँ पे अपनी मम्मी की हेल्प ले सकते हो या आपकी जो सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, आप किसी की भी हेल्प से इस डायग्राम को अपनी बुक में ही बना लेना। थिंक एंड आंसर, बेटा आपकी बुक में क्वेश्चंस नहीं है उतने, सो हमने खुद की तरफ से क्वेश्चन आंसर किए हैं। एक्टिविटी भी आपको खुद से करनी है, HW 16 पेज नंबर पे आप खुद से करेंगे, ओके? ये एक्टिविटी भी आपको खुद से बुक में ही कंप्लीट करनी है। नाउ क्वेश्चन आंसर ग्रोइंग अप, ये आपको कॉपी में करना है, जो आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है बट बिटवीन द चैप्टर्स है, जो आपको अपनी कॉपी में करना है, इसे आपको आपकी कॉपी में करना है, सभी बच्चों को आपकी कॉपी में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये PDF भी शेयर कर दी जाएंगी, ओके? इसकी PDF आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स हैं और एक HW भी है। तो यहाँ पे इट्स 12:09, आप हमारा टाइम भी ओवर होने वाला है। सी, इस चैप्टर के बीच में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस है या डाउट है, ये जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? एंड डैश कैनॉट लुक आफ्टर देमसेल्फ, यानी कौन से लोग हैं जो खुद से खुद की देखभाल नहीं करते, तो हमने क्या फिल किया? इन्फेंट। ऐसे ही द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज, अभी मैम ने क्या कहा, जो हमारी ग्रोथ की प्रोसेस होती है वो धीरे होती है, ऐसा नहीं कि हम नाइट में सोए इन्फेंट और कल हम एकदम चाइल्ड बन जाए या हम यंग मैन बन जाए, ऐसा नहीं होता। देन टीनेजर्स ग्रो इनटू एंड डैश मेन एंड वुमेन, टीनेजर्स जब बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडल्ट। वैसे ही और सीडलिंग ग्रोज इनटू अ प्लांट, जब भी कोई सीड होता है तो वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है और सीडलिंग के बाद वो क्या बनता है? प्लांट बनता है, ओके? सो क्वेश्चन आंसर हम, यस नमन बताइए बेटा।
यस नमन, अनम्यूट करिए। नमन बेटा, जब आप हैंड रेस करते हैं, मैम आपको अनम्यूट बोलती हैं, तो प्लीज अब आप जल्दी अनम्यूट हो जाइए। यस मिहिर, अनम्यूट करिए मिहिर। दिव्यांश लखवानी, अनम्यूट करिए। यस दिव्यांश। यस दिव्यांश, बोलिए जल्दी, आपने हैंड रेस। आपने जो अभी होमवर्क दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स, नो बेटा, इट्स नॉट योर होमवर्क। वो मैम कब तक आ जाएगा? बेटा इट्स नॉट योर होमवर्क, होमवर्क वो नहीं है। मैंने तो वो बोला ही नहीं कि आपका वो होमवर्क है। होमवर्क में तो आपको एक ड्राइंग करनी है, ठीक है। आप क्या ड्राइंग करेंगे, आपकी व्हाइट पेज है ना, आप लोगों की कॉपी में जो व्हाइट पेज होता है वहां पर आपको ड्रॉ करना है। आप डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके एवरीवन, नोट डाउन इन योर डायरी। आपको डायरी में करना है अभी नोट डाउन। आप ईवीएस लिखेंगे और उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ वन केक। ड्रॉ वन केक। केक सभी को पसंद है ना, तो सभी बच्चे बहुत अच्छी से केक ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ वन केक इन योर कॉपी एंड A&D and make 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 the candles CAN। बेटे राइटिंग सभी को दिख रही है? Candles on the cake। On the cake to show how old you are। ओके, क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स हम अपने नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अभी ड्रॉ वन केक इन योर कॉपी, यानी आप लोगों को अपनी कॉपी में एक केक ड्रॉ करना है। इट्स योर चॉइस, पूरी तरह से आपकी चॉइस है, आप कैसा केक ड्रॉ करना चाहते हैं। देन मेक द कैंडल्स ऑन द केक, आपको उसमें कैंडल्स बनाने हैं। कितने कैंडल्स बनाने हैं? टू शो हाउ ओल्ड यू आर, आपकी जितनी एज है आपको उतने कैंडल्स बनाने हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक केक बनाया, ओके, इट्स योर चॉइस, आप कैसा केक बनाते हो, जैसा भी केक आपको पसंद हो। अब आपको यहाँ पे कैंडल्स बनाने हैं। अगर आप 7 इयर्स के हो आप 7 कैंडल्स बनाओगे, आप 8 इयर्स के हो आप 8 कैंडल्स बनाओगे। ओके, आप जितने इयर्स के हो आपको उतने कैंडल्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं और आप उसको अच्छे से कलर भी करोगे। ओके ओके बेटा, कैसे करना है? ठीक है, यस चेतना, अनम्यूट करिए बेटा। मैम मुझे ना चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो आपने करवाए हो उसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा प्लीज। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सेंट इन क्लास 2nd ग्रुप ना। अच्छा मैम, क्या ये देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन इन इट, एक्चुअली वी मिस्ड द यस्टरडे क्लास ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। Yes ma'am, only one question. We are divided in 2 groups.